Good morning, student. Myself Chirag Sukani, and I'm going to teach you elements of strategic management subject. And today we will continue our chapter number 2, that is environmental analysis, and in that there is a next topic, that is environmental threat and opportunity profile. Now, in earlier video we discussed about the environmental analysis, concept of environmental analysis, then concept of environment, then nature and the impact of environment. So today in this session we will discuss about environmental threat and opportunity profile. Now first of all, what is environmental threat and opportunity profile? The short form of environmental threat and opportunity profile is what? ETOP. Okay, so when environmental analysis is undertaken, then it is necessary that the results are structured. That means what? When the organization analyze the environment, that is economical, political, legal, technological, so अगर ये हर एक environmental factors को analyze करेंगे, so it is necessary that कि whatever result is arrive ना, वो result को systematically structured करना है, present करना है. Okay, so ETOP is a most useful way of structuring the results of environmental analysis, and this ETOP, it is also known as what? Environmental impact matrix. Clear हुआ? So when the environmental analysis is undertaken, यानी analysis of various environmental factors, that is economical, political, legal, technological, cultural, ये सब factors को analyze करेंगे. Now जैसे उसको analyze करेंगे, आपको पता चलेगा, उसका रिजल्ट पता चलेगा. सो वो रिजल्ट को सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करने के लिए ETOP is a most useful way of structuring the results of the environmental analysis. And this ETOP, it is also known as what? Environmental impact matrix. So what is the definition of ETOP? ETOP is what? ETOP is a summarized statement which described environmental factors and their likely impact on the organization. So what is ETOP? ETOP is a summary statement which described environmental factors. So what is environmental factors? That is economical, political and legal, technological, socio-cultural and so on. So these are the environmental factors and their likely impact on the organization. यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा या नेगेटिवली अफेक्ट करेगा. सोसाइटल फैक्टर्स पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा या नेगेटिवली अफेक्ट करेगा. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. सो ETOP इज नथिंग बट समरी स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब्ड एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर लाइकली इंपैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ ETOP can be prepared in the by taken into considering these 4 points. Yani when the organization prepared the environmental threat and opportunity profile, these 4 points should be taken into consideration. First is what? Environmental factors. Second is assessing importance of environmental factors. Third is assessing impact factors. And fourth is what? Combining importance and the impact factors. Now these 4 points we discuss one by one. Now first is environmental factors. Now ETOP. What is ETOP? ETOP is a presentation of environmental analysis in a structured way. यानी जैसे environment को analyze किया, उसको structured way में, systematic way में present करने के लिए ETOP is used. So ETOP is a presentation of environmental analysis in a structured way. Therefore, the starting point of ETOP is what? Identification of different components of the environment. What we have to identify? We have to identify the different components of the environment. And different components of the environment क्या है? That is economical, political and legal, technological, socio-cultural, competitive and so on. Now, we all know that each major component is divided into sub-component. So example, economic environment है. Now economic environment, broad environment. Okay. Now this economic environment may be divided into sub-component, that is rate of economic growth, rate of inflation, monetary policy, fiscal policy and so on. Likewise, political and legal environment. Political and legal environment may be divided into political system, legal rules of the business and so on. Then technological environment, it may include inventions and the techniques. Okay, then socio-cultural environment, it include beliefs, desire, expectation, education and so on. Likewise, competitive advantage may be divided into threat of entry and the threat of exit. So first point में क्या करना है?
आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. ओके, सो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट क्या है? इकोनॉमिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड सो ऑन. एंड दिस major factors it is divided into sub component. So economic environment में क्या क्या आएगा? So economic growth आ सकता है, inflation, monetary policy, fiscal policy आएगा. Okay, political factors में क्या आएगा? Political system of the country, then legal rules of the business and so on. Then technological point of view है तो inventions, innovations, techniques ये सब components आएगा. So first step में क्या करना है? We have to identify the environmental factors. Clear? Now second point, assessing importance of the environmental factors. Now at this stage, importance of the environmental factor is assessed. For that purpose, degree of importance can be given. ये main है. ओके, आपको असेस करना, असेस क्या करना है? इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ओके, सो इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स को चेक करना है, यानी कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. Okay, so that is called as what? Assessing importance of the environmental factors. For this purpose, degree, that is degree of importance can be given. Now degree can be given in terms of what? Qualitative, that is high, medium, low, and the quantitative, that is 3, 2 and 1. Now given the degree of importance in terms of qualitative or the quantitative is necessary, because all the environmental variables will not have the same degree of importance. Agree कि हर एक environmental variable will not have the same degree of importance. That means what? Economical environment ज्यादा important है. Okay, socio-cultural environment भी ज्यादा important है. Might possible technological environment less important है. Might possible competitive environment लेस इंपॉर्टेंट है. सो आपको क्या करना है? एट द सेकंड स्टेज वी हैव टू असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ओके, और इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस में असेस करना है? फॉर दिस पर्पस डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस कैन बी गिवन. और ये डिग्री यानी आपको रेट देना है, हाई इंपॉर्टेंस है, लो इंपॉर्टेंस है या मीडियम इंपॉर्टेंस है. ओके, और उसको इंडिकेट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म में, दैट इज 3, 2 and 1. यानी हाई होगा तो 3 पॉइंट देंगे, मीडियम होगा तो 2 पॉइंट्स देना है, और लो होगा तो 1 पॉइंट्स देंगे. ओके, नाउ ये डिग्री देना क्यों इंपॉर्टेंस आपको अभी क्लियर हुआ कि डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, बिकॉज हर एक एनवायरमेंटल वेरिएबल्स विल नॉट हैव द सेम डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस. फॉर एग्जांपल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस सेक्टर है. ओके, सो जस्ट आई एज्यूम कि जो टेक्नोलॉजिकल, दैट इज इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस, ये फैक्टर्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेस इंपॉर्टेंट है. ओके, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोशियो कल्चरल, कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव टू असेस द डिग्री ऑफ, we have to assess the importance of the environmental factors. Clear? Then at the third stage, assessing impact factors. Now the environmental factors which is relevant may either present threat or it provide the opportunity. That means what? Impact may be provide the threats or it may be opportunity. Okay, यानी जैसे आप एनवायरमेंटल को एनालिसिस करेंगे, सो वो एनवायरमेंटल एनालिसिस आपको आइदर पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा या नेगेटिवली अफेक्ट करेगा. ओके, सो पॉजिटिवली यानी अपॉर्चुनिटीज एंड नेगेटिवली यानी थ्रेट्स. ओके, सो पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ अ फैक्टर इज व्हाट? अपॉर्चुनिटी, एंड द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ अ फैक्टर इज व्हाट? थ्रेट्स. Likewise, impact factors may also be quantified such as 3 to 1 और the qualitative such as high, medium and low. Now उसमें भी डिग्री आएगा. क्यों डिग्री आएगा? से एग्जांपल कि कोई थ्रेट से, से एग्जांपल एंट्री ऑफ द न्यू कंपटीटर्स, ये थ्रेट से मेरी ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट अज्यूम मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंट्री ऑफ कंपटीटर्स इज व्हाट? थ्रेट्स. बट वो थ्रेट्स कम है, ज्यादा नहीं है, सो मैं उसको कितना रेट दूंगा? 1. लो थ्रेट्स. ओके, बट टेक्नोलॉजिकल चेंज होना ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाई थ्रेट्स है, सो मैं उसको क्या देता हूं? 3, दैट इज हाई. आया समझ में? सो इंपैक्ट फैक्टर्स को भी आपको मेजर करना है, डिग्री देना है इन टर्म्स ऑफ 3 to 1 और दी हाई, मीडियम एंड दी लो. सो एट द थर्ड स्टेज वी हैव टू असेस द इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स. क्लियर? देन आफ्टर फोर्थ,
कंबाइनिंग इंपॉर्टेंस एंड इंपैक्ट फैक्टर्स, नहीं सेकेंडरी पॉइंट है, ये आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. दैट इज कंबाइनिंग इंपॉर्टेंस एंड इंपैक्ट फैक्टर्स. नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड द इंपैक्ट फैक्टर्स कैन गिव क्लियर पिक्चर ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर. यानी इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करना है, वो टाइम पे ये स्टेप जरूरी है. ओके, सो इफ both variables have been quantified, then this can be combined by multiplication. देख ये फोर्थ जो स्टेप है, that is combination of importance and impact factors. ये स्टेप कब यूज होगा? when this variable can be measured in quantified term. quantified यानी 3, 2 and 1. वो क्वालिटेटिव में ये मेजर नहीं होगा. ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंबाइनिंग इंपॉर्टेंस एंड द इंपैक्ट फैक्टर्स. ओके, सो एक इंडस्ट्री का दूसरे इंडस्ट्री के रिजल्ट के साथ कंपेयर करना है तो वो टाइम पे ये स्टेप्स जरूरी है. बट ये कब पॉसिबल है? इफ बोथ वेरिएबल्स हैव बीन क्वांटिफाइड, देन दिस कैन बी कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो दिस आर द 4 steps or the 4 points taken into considering while preparation of environmental threat and opportunity profile. That is environmental factors, second assessing importance of the factors, third assessing impact of the factors, and fourth is what? Combining importance and the impact factors. Next, ETOP can be presented in a 2 form, that is matrix form in a descriptive form. Okay, यानी ETOP अभी आपको प्रिपेयर करना है, so it can be prepared in 2 way, matrix form and a descriptive form. Now first is what? Matrix form. Now in matrix form, जो importance and the impact of the various environmental factors are presented in a table form and it should be in a quantified manner. ना आपको clear cut पता चलेगा. Matrix, it is what? Mathematical term. ओके, सो मैट्रिक्स टर्म में क्या करना है? जो इंपॉर्टेंस है, इंपैक्ट फैक्टर्स है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसको किस में मेजर करना है? इट शुड बी मेजर इन क्वांटिफाइड टर्म, दैट इज 3, 2 एंड 1 ओनली. हाई, मीडियम, लो नहीं चलेगा. सो इन मैट्रिक्स फॉर्म, इंपॉर्टेंस एंड द इंपैक्ट फैक्टर्स आर प्रेजेंटेड इन अ टेबल फॉर्म एंड इट शुड बी इन अ क्वांटिफाइड मैनर. ओके, सो दिस इज अ structure of the matrix form of ETOP, how it is prepared. Now ये जो structure है ना, आपने जो 4 points पढ़ा ना वही है. So first step में आपने क्या पढ़ा? first step में that is environmental factors पढ़ा, और वो environmental factors क्या था? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल था ना. इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, कॉम्पिटिटिव, एंड उसके वेरियस कंपोनेंट्स. ना वेरियस कंपोनेंट्स क्या है? से इकोनॉमिक तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड सो ऑन. ओके, सो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना. सेकंड स्टेप में आपने क्या किया? डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस देखा. डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ना, ये डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस आपको सॉरी असेसिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्टर्स. ओके ना, इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्टर्स किस में मेजर किया? डिग्री में. क्लियर ना, वो डिग्री क्वालिटेटिव एंड क्वांटिफाइड था. क्वालिटेटिव यानी हाई इंपॉर्टेंस, मीडियम इंपॉर्टेंस या लो इंपॉर्टेंस, एंड क्वांटिफाइड मतलब 3, 2 और दी 1. क्लियर. थर्ड स्टेप में क्या किया? इंपैक्ट, असेसिंग इंपैक्ट फैक्टर्स ना. इंपैक्ट भी आपने किस में मेजर किया? डिग्री में. ओके, दैट इज हाई इंपैक्ट, मीडियम इंपैक्ट एंड द लो इंपैक्ट, वो क्वांटिफाइड था. एंड जो ये अभी याद रखना है, प्लस और -3, प्लस और -2 एंड प्लस और -1, दैट मीन्स व्हाट? इफ हाई अपॉर्चुनिटी इंपैक्ट हाई है तो आप +3 में मेजर करोगे. क्लियर. बट आपके थ्रेट्स का इंपैक्ट हाई है, थ्रेट्स, तो आप उसमें मेजर करोगे -3. आ रहा है समझ में? सो दिस आर दी हाई, मीडियम एंड दी लो, दैट इज प्लस एंड -3, प्लस एंड -2 एंड प्लस एंड -1. प्लस और माइनस क्यों किया? बिकॉज इंपैक्ट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, सो एज्यूम अगर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, सो मैंने यहां पे +3 दिया. दैट मीन्स व्हाट? इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, यानी इंपैक्ट जो है ना, अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा दे रहा है, दैट इज हाई अपॉर्चुनिटी दे रहा है. ओके, एज्यूम पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ मायने नहीं रखता है, कुछ मायने नहीं रखता है, तो मैं क्या लेता हूं? कुछ थ्रेट नहीं है, और थ्रेट है बट कम है तो -1. आया समझ में? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ETOP. आया समझ में? नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. Now in a descriptive form,
the impact of various factor is described in terms of positive, that is opportunity, and the negative, that is what, threats. Now the name itself says just descriptive. Descriptive यानी आपको डिस्क्राइब करना है. क्या डिस्क्राइब करना है? डिस्क्राइब करना इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव और इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव. यानी अपॉर्चुनिटीज होगा तो प्लस साइन करके अपॉर्चुनिटीज को डिस्क्राइब करना है. ओके. थ्रेट होगा तो माइनस साइन करके उसको डिस्क्राइब करना है. क्लियर? दैट इज व्हाट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. नाउ हाउ द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इज प्रिपेयर्ड? सिंपल सा. ओके. सो एट द फर्स्ट स्टेज एनवायरमेंटल फैक्टर्स आप डालोगे. ओके. एंड सेकंड स्टेज में इंपैक्ट, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या डालना है? इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो उसको डिस्क्राइब करना है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव या इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव. ओके. यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स पॉजिटिव दे रहा है. ओके. सो आप यहां पे प्लस साइन करके डिस्क्राइब करोगे. टेक्नोलॉजिकल है, सप्लायर है, गवर्नमेंट है, कंपटीटर्स है, व्हाटएवर जो आपको लगता है एज अ टॉप मैनेजमेंट, आपकी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट हो आप. ओके. आपको जो लगता है तो आप उसको लिखोगे. सो एग्जांपल टेक्नोलॉजी. ओके. ना टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है कि अपॉर्चुनिटी से, तो मैं यहां पे प्लस साइन करता हूं. प्लस साइन. ओके. फिर बाद में लिख मतलब डिस्क्राइब करना है कि बिकॉज ऑफ हायर ग्रोथ. ओके. हायर ग्रोथ इन प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये मेरे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटीज है. लाइक दैट. आया समझ में? सो दिस इज प्रिपेयर्ड ETOP विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड लास्ट एक एग्जांपल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. इन बुक्स इट इज गिवन. ओके. सो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ ETOP का एग्जांपल दिया. ओके. सो एग्जांपल सोशियो कल्चरल फैक्टर्स उसने लिया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ने. नाउ सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज को क्या किया उसने? प्लस किया. और क्या लिखा? कंटिन्यू एम्फासाइज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग पावर सप्लाई फॉर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड डोमेस्टिक कंजप्शन. तो बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है इकोनॉमी में. ओके. तो पावर सप्लाई बढ़ जाएगा. सो उसने क्या इंडिकेट किया? अपॉर्चुनिटी से. ओके. बट सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू उसने थ्रेट भी डाला. क्यों थ्रेट डाला? सीवियर रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, यानी लैक ऑफ रिसोर्सेस है, मिल नहीं, अच्छे से रिसोर्सेस मिल नहीं रहे. सो उसने क्या डाला? थ्रेट डाला. लाइकवाइज टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड ने अपॉर्चुनिटीज डाला. क्यों अपॉर्चुनिटी? हायर ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. डे टू डे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ हो रहा है. सो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसका अपॉर्चुनिटीज है. लाइकवाइज सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू उसने थ्रेट डाला, माइनस किया. क्यों थ्रेट? इंक्रीजिंग स्कैर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ कार्टेल फॉर्मेशन. कार्टेल फॉर्मेशन मतलब सप्लायर का ग्रुप्स बन जाता है एंड दे कीप द प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल ऑन हाई लेवल. ओके. सो कार्टेल फॉर्मेशन बन गया ना, तो टेक्नोलॉजी का स्कैर्सिटी हो गया, इसलिए उसने थ्रेट डाला. लाइकवाइज गवर्नमेंट का लिबरल पॉलिसी है, लिबरल पॉलिसी रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी इंपोर्ट, तो वो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी. कंपटीशन है, सो इंक्रीजिंग रोल ऑफ पावर प्लांट कंसल्टेंट, बहुत सारे इंक्रीज हो रहा है, सो उसके लिए थ्रेड्स है. सो दिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ ETOP, which is preparation of ETOP of भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो ये आपका टॉपिक था एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल. क्लियर? सो इन चैप्टर नंबर 2 part 1 is over, that is concept of environmental analysis, concept of environment, and after analyzing the environment the organization prepare ETOP, that is environmental threat and opportunity profile. Clear? Okay, bye, take care.